السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کنول۔ کھیل کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں ہوں سلما کوثر۔ اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان کے 3 لاکھ نوجوانوں کے لیے آئی سی ٹی ٹریننگ، ہواوے ٹیکنالوجیز اے آئی، سائبر سیکیورٹی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں تربیت دے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آئی سی ٹی ٹریننگ پورٹل کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہواوے ٹیکنالوجیز کے ساتھ جائزہ اجلاس، آئی سی ٹی ٹریننگ پورٹل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی ہدایت۔ ٹیکنالوجی کے فروغ اور ڈیجیٹل انقلاب میں نوجوانوں کا کلیدی کردار، پروگرام سے آئی ٹی برآمدات میں اضافہ، روزگار کے حصول میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ارکان قومی اسمبلی اظہر قیوم راہرا، عبدالغفار وٹو اور رکن پنجاب اسمبلی فدا حسین وٹو کی ملاقات، متعلقہ حلقوں کے امور اور ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اراکین قومی اسمبلی کو عوام سے رابطہ رکھنے اور مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل سپہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اجلاس کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جدہ میں آذربائیجان کے وزیر خارجہ الہام بیراموف سے ملاقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال، مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے کا عزم۔ مریم نواز کا پنجاب بھر میں کم از کم ماہانہ اجرت کا نفاذ یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس نے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم فیصلے۔ کم از کم 37,000 ماہانہ اجرت کی ادائیگی یقینی بنائی جائے، لیبر کالونیاں بنانے کے لیے پلان طلب، سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کی تعمیر نو کا بھی حکم، علاج معالجے کی سہولیات بہتر بنانے کی ہدایت۔ Really close that one, it was drifting. This time that fine. That's a good hit. Gone, bowled in. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فیصلہ کن ٹاکرا، فائنل میں نیوزی لینڈ کا بھارت کو 252 رنز کا ہدف، ڈیرل مچل کے 63 اور مائیکل بریسویل کے ناٹ آؤٹ 53 رنز، ورن چکرورتی اور کلدیپ یادو کی 2 وکٹیں، محمد شامی اور جڈیجہ 1 وکٹ حاصل کر سکے۔ They want Bracewell on strike. Certainly quick, but I don't think he's quick enough. Fine. And foot's not quite good enough. Drives on the offside this time for 4 more. Down the wicket, down the ground, over, long on. They have throughout the tournament. That has just been dispatched. Now he's gone very high. But I think he's gone long enough to field to protect. Now goes over the infield on the offside. 252 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ جاری۔ 46.2 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر بھارت نے 232 رنز بنا لیے۔ روہت شرما اور شبمن گل کی جانب سے ٹیم کو 105 رنز کا آغاز، روہت شرما کے 76، شبمن گل کے 31، کوہلی کے 1 اور شریاس ایئر کے 48 رنز۔ مقابلہ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ کے وی کرکٹر گیلن فلپس کی شاندار فیلڈنگ کا سلسلہ جاری، بھارتی اوپنر شبمن گل کا ناقابل یقین کیچ پکڑ کر پویلین واپس بھیج دیا۔ گیلن فلپس اس سے قبل بھی ایونٹ میں کئی مشکل کیچز پکڑ کر شائقین کو حیران کر چکے ہیں۔ Rizwan suffered at the hands of Glenn Phillips. Brilliant at point. Just the anticipation and athleticism and
picking that with one hand. It's Put down. At least he got two hands to. He's calling the physio. Goes high, out towards deep square, coming in and puts it down, another one down for India. Just did not quite... चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारतीय फील्डर्स ने कई आसान कैचेस ड्रॉप किए। रचिन रविंद्रा के 2 ओवर्स में 2 मरतबा कैच ड्रॉप। रोहित शर्मा ने डैरिल मिचेल का कैच पकड़ने का मौका जाया किया। शुभमन गिल ने डीप स्क्वायर लेग पर ग्लेन फिलिप्स का कैच छोड़ दिया। Shubman Gill, another chance goes down. पाकिस्तान हम सब का है, मुनाफरत और इंतशार की कोई गुंजाइश नहीं। तहरीके पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान तक के तमाम मराहिल में अक़लियती बिरादरी का किरदार अहमियत का हामिल। आइन अक़लियतों के हुकूक का मुहाफ़िज़, पंजाब हुकूमत की अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात काबिल तहसीन हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। बानी पीटीआई की तफरीबकारी और मुल्क दुश्मनी अयां, फसाद, तशद्दुद और इंतशार की सियासत को फरोग दिया। पीटीआई माजी का किस्सा बन चुकी, मुस्तक़बिल तारीख है। एक तरफ गालम गलोच और दूसरी जानिब मिन्नत समाजत करना पीटीआई का वतीरा बन चुका। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की क़यादत में खुसूसी कमेटी का चल्लास का दौरा। मुतासरीन भाषा डैम के जरगे से मुलाकात। मसाइल के हल के लिए तकनीकी कमेटी को हिदायत जारी। मुतासरीन की बहाली और इलाके की तरक्की अव्वलीन तरजीह। आबादकारी प्रोग्राम, सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल को हल किया जा रहा है। स्कूल्स की तामीर के साथ ज़मीन के मुआवजे की अदायगी भी यकीनी बनाई जाए। वफाकी वजीर अमीर मकाम। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बंदूक का इस्तेमाल जहाद नहीं, दहशतगर्दी। मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाना सफ़ाकियत और दरिंदगी है। दीनी मदारिस, अमन, तालीम और सलामती के मराकज़ अपने मिशन से पीछे हटेंगे और ना अकाबिर के तरीक़ाकार को छोड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की अकोड़ा खटक में शहीद मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत तमाम शहदा के दरजात की बुलंदी के लिए दुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी ही पार्टी के निशाने पर। पीटीआई पेशावर के इजलास में केपी हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ चार्जशीट। मसाइल हल ना हुए तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पेशावर के कई इलाके पीने के साफ पानी और स्ट्रीट लाइट से महरूम। सीवरेज का निजाम तबाह। वाटर एंड सैनिटाइजेशन सर्विसेज की नाकिस कारकर्दगी। सफाई का निजाम दरहम बरहम। सरकारी जमीन कब्जा माफिया से वागुजार कराने का मुतालबा। भारत के इश्तिआल अंगेज बयानात और जाबिराना हथकंडे इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा। सियासी तज्जियाकारों और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन की आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक भारतीय वज़रा के बयानात की मज़म्मत। भारतीय दावे जम्मू कश्मीर की तारीखी और कानूनी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए तनाज़ कश्मीर का मुनसिफाना हल नागुज़ीर। गजा जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात के लिए हमास और इसराइल रजामंद। फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात कल दोहा में मुतवक्के। इसराइल का मुज़ाकरात के लिए वफ़द कतर भेजने का ऐलान। हमास को भी मुज़ाकरात शुरू करने का कवी इम्कान। तेल अवीव में इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए एहतजाजी मुज़ाहरा। भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने के 3 साल मुकम्मल। हथियारों के हवाले से भारत का कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी निज़ाम इंतहाई मशकूक। 9 मार्च 2022 को मिसाइल मियां चन्नू में आ गिरा। हादसे के बाद पाकिस्तान से माजरत। वाक़या इंसानी गलती करार। जिम्मेदार 3 एहलकार बरतरफ। पाकिस्तान की जानिब से मुश्तरका तहकीकात के मुतालिबे पर कोई तवज्जो न दी गई। एक जौहरी मुल्क की गैर जिम्मेदारी खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती है। और शुमाली और बाला इलाकों में 16 मार्च तक बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और खित्ता पोचोहार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। 14 मार्च तक बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ।
शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेट्रो बस सर्विस बनाई, जिससे हम जैसी खवातीन का सफर हुआ आसान, महफूज और पुरसकून। हाँ जी, शुक्रिया तो बनता है। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म ने यह बात लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए कही, जिसकी तफसील बताएंगे उमर फारूक अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हवावे टेक्नोलॉजीज के साथ पाकिस्तान के 3 लाख नौजवानों को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरबियत के हवाले से जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है। तरबियती प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफे समेत नौजवानों को रोजगार के उसूल में मदद मिलेगी। इजलास में गुज़िश्ता साल चीन में हवावे टेक्नोलॉजीज के साथ तय किए गए मुआहदों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया और नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करने समेत IT के शोबे में आलमी मेयार की तरबियत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इकदामात पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने IT ट्रेनिंग प्रोग्राम के मनसूबों पर तेजी से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि मनसूबे को तमाम सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक वुसअत देकर ICT ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। इजलास में हवावे टेक्नोलॉजी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की और पाकिस्तान में जदीद तरबियती प्रोग्राम के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ICT ट्रेनिंग पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह भी करेंगे। इकदाम के तहत हवावे टेक्नोलॉजीज नौजवानों को मसनूई ज़हानत, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज में तरबियत फराहम करेगी। हवावे टेक्नोलॉजीज की जानिब से अब तक 20,315 तलबा को तरबियत फराहम की जा चुकी है। प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स, ट्रेनर्स और ICT टेक्नोलॉजीज में काम करने वालों की अपस्किलिंग की जा रही है। हवावे टेक्नोलॉजीज जिन मास्टर ट्रेनर्स को तरबियत फराहम करेगा वो मकामी सतह पर नौजवानों को ट्रेनिंग फराहम करेंगे। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली अज़हर क़य्यूम नाहरा, अब्दुल गफ़ार भट्टो और रुकन पंजाब असम्बली फ़िदा हुसैन भट्टो ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मुतालिका हलकों के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरकान असम्बली को अवाम से राबता रखने और उनके मसाइल हल करने की हिदायत की। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सदर आसिफ अली जरदारी नए पार्लिमानी साल के आगाज पर मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं फाहद जावेद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली पर मुश्तमिल मजलिस शूरा का इजलास कल 3 बजे दोपहर पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा, जिससे सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी अपना दूसरा खिताब करेंगे। 1 साल के कम अरसे में यह सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट से दूसरा खिताब होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदारती खिताब के मौके पर तीनों सर्विसेज चीफ, चारों गवर्नर्स, वज़राए आला, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बलियों के स्पीकर समेत सिफारतकार गैलरी में मदऊ किए गए हैं। मुश्तरका इजलास के मौके पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। सदर ममलिकत का खिताब न सिर्फ एक आईनी जरूरत है बल्कि इसे रिवायती तौर पर बहुत अहम माना जाता है। अमूमी तौर पर यह खिताब न सिर्फ हुकूमती कारकर्दगी की अक्कासी करता है बल्कि मुस्तकबिल की कानून साजी का भी अक्कास होता है। सदर ममलिकत का खिताब आईन पाकिस्तान के तहत आईन के आर्टिकल 56 की शिक 3 के तहत इंतखाबात के बाद और हर पार्लिमानी साल के इब्तदाई सेशन में होना जरूरी है। 1 मार्च से रवां पार्लिमानी साल के आगाज पर सदर ममलिकत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइन के आर्टिकल 53 की शिक 1 के तहत सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने 10 मार्च को तलब कर रखा है। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार ने जद्दा में OIC के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास के मौके पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जिहून बैरामोफ और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा सुगियानो से अलग अलग मुलाकात की। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक आज़रबाईजान के सदर के हालिया दौरा पाकिस्तान के तनाज़ुर में दोनों फरीकों ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफे की रफ्तार को जारी रखने और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा सुगियानो के साथ मुलाकात में फरीक़ैन ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में वर्कर्स के लिए 37,000 माहाना कम अज कम उजरत का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए सूबे में लेबर कॉलोनीज बनाने के लिए भी प्लान तलब कर लिया है। तफसील वर्दा सलीम से। लाहौर में आला सतह के मुशावरती इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी देते हुए कहा कि मजदूरों की फलाह बहबूद के हवाले से पंजाब को मिसाली सूबा बनाएंगे। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मजदूर की उजरत, इलाज, मुआवजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के बच्चों के लिए आला तालीम के बेहतर मौके मुहैया किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ये पहली चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं मजदूरों के लिए, उनकी उजरत के लिए, अपना घर दे रही हैं, छत दे रही हैं। इससे पहले मैंने बहुत से चीफ मिनिस्टर देखे हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आला ने बहुत बेहतर सोचा है, हम मजदूर आदमी हैं, हमको रोजगार के लिए अच्छा सोचा है। मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है मजदूरों के लिए, फलाई काम कर रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है अवाम को रिलीफ के देने के लिए। इजलास में फैसला किया गया कि सूबे में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग, लाहौर और रावलपिंडी में प्री स्क्रीनिंग के लिए मरियम नवाज शरीफ वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, जहाँ मरीजों को स्क्रीनिंग के बाद बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। इजलास में लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड के रहमतुल आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का भी असूली फैसला किया गया और रहीम यार खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए लेबर लॉस में तरमीम करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मजदूरों के लिए किए जाने वाले ये इकदाम काबिल तहसीन है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच और इस वक्त इंडिया की बैटिंग जारी है। सिर्फ 3 रन्स की दूरी पर है जीत से इस वक्त भारत और सख्त मुकाबला है। शायकीन क्रिकेट की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। सिर्फ 3 रन्स हासिल करना बाकी है और ये मैच इंडिया के नाम होने वाला है कुछ ही देर में। चंद गेंदों पर सिर्फ 3 रन्स दरकार हैं, 8 गेंदें बाकी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल मैच जारी है। भारत जीत से सिर्फ 3 रन्स की दूरी पर है, 8 गेंदें बाकी हैं और अब सिर्फ 2 रन्स की जरूरत है। ज़िशान कुयूम भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। ज़िशान, चंद लम्हे बाकी रह गए, बहुत क्रूशल मोमेंट्स इस वक्त चल रहे हैं ग्राउंड के अंदर। शायकीन क्रिकेट की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। क्या लग रहा है आपको, ये 2 या 3 रन्स की दूरी हासिल करना, इसके करीब जाना कितना कोई मुश्किल काम रह गया भारत के लिए? देखिए, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है क्योंकि और इंडिया ने मैच अपने नाम कर लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बन चुका है इस वक्त इंडिया। विनिंग मोमेंट है भारत के लिए इस वक्त और टीम इंडिया के लिए इट्स अ बिग डे फॉर देम। भारत चैंपियंस ट्रॉफी का विनर बन चुका है। फाइनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी समेट ली है। 4 विकेटों से ये कामयाबी हासिल की है भारत ने। तीसरी मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है इंडिया ने। ज़िशान कयूम हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान, विनिंग मोमेंट है इस वक्त भारत के लिए। कितना मुश्किल था भारत के लिए आज का मैच जीतना? प्रेशर तो दोनों टीम्स के ऊपर था। बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्रेशर तो दोनों टीमों के ऊपर था और अगर कोई भारत को शिकस्त दे सकता था इस पूरे टूर्नामेंट पे तो वो न्यूजीलैंड ही था, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है गुज़िश्ता कुछ मैचेस से इस इवेंट में, वो उससे यही साबित होता था कि वो भी एक अनबीटन टीम है। और न्यूजीलैंड की टीम फाइनल हारी है। फाइनल से पहले वो सिर्फ इवेंट में एक ही मैच हारी थी जो कि भारत के खिलाफ था, लेकिन भारतीय टीम को जो है वो पूरे इवेंट में वो नाकाबिले शिकस्त रही। वो डिजर्व करते थे कि जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली है पूरे टूर्नामेंट में और तमाम टीमों के को उन्होंने हराया। उसके बाद वो फाइनल में पहुंची और फाइनल भी भारत ने जो है वो 4 विकेटों से जीत लिया है। तीसरी मर्तबा जो है वो भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुआ है। ये भी एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले कोई भी टीम 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो सिर्फ 2 मरतबा ये टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुई है। भारत जो है वो 2002 में इस सबसे पहले जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुआ था, जब भारत और श्रीलंका को मुश्तरका तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह करार दिया गया था। इसके बाद 2013 में भारत ने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी दूसरी मरतबा जीती थी। 2017 में वो फाइनल में पाकिस्तान से शिकस्त खा गई थी, लेकिन 2025 में दोबारा भारतीय टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है और 4 विकेटों से न्यूजीलैंड को हराने के बाद एक मरतबा फिर जो है वो टाइटल अपने नाम कर लिया है। अगर मैं आज के मैच की बात करूं तो न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग की, उन्होंने 50 ओवर्स में 7 विकेटों पर 251 रन बनाए।
ان کے اوپنر رچن رویندرا نے 37 رنز کی اننگز کھیلی. 2 جو ہیں وہ 50 پلس سکور ہوئے ہیں کیویز کی طرف سے. ایک ڈیرل مچل نے 63 رنز بنائے. اس کے علاوہ مائیکل بریسول نے آخر میں جو ہے وہ ناٹ آؤٹ 53 رنز کی اننگز کھیل کر جو ہے وہ 251 رنز تک سکور پہنچایا. اور بھارت نے آج اپنے سپنرز کا استعمال بڑے زبردست طریقے سے کیا ہے. ورن چکرورتی نے جو ہے وہ اوپننگ پارٹنرشپ توڑی, انہوں نے 2 وکٹیں حاصل کی ہیں. کلدیپ یادو نے بھی 2 وکٹیں اپنے نام کی ہیں. رویندرا جڈیجا 1 وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. صرف محمد شامی واحد فاسٹ بالر تھے جنہوں نے 1 وکٹ حاصل کیا, اور 252 رنز کا ہدف بھارت نے 1 اوور قبل ہی 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا ہے. بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا روہت شرما کا, جو کہ 70 رنز کی اننگز کھیل کر ایک اچھا آغاز دیا ہے. اس کے بعد شبمن گل نے 31 بنائے. وراٹ کوہلی حالانکہ بڑے میچ کے پلیئر ہیں لیکن وہ بڑے میچ میں فلاپ ہو گئے اور صرف 1 رن بنانے کے بعد ہی آؤٹ ہو گئے ہیں. شرییس ایئر نے 48 رنز کی اننگز کھیلی ہے اور کے ایل راہل 34 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے. اور بھارت نے جو ہے وہ 6 وکٹوں کے نقصان پر 1 اوور قبل ہی 252 رنز کا ہدف حاصل کر کے ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. ٹھیک ذیشان, آپ نے بڑا زبردست اوور ویو دے دیا پورے میچ کا, لیکن رنر اپ ٹیم سے غلطیاں کیا ہوئیں؟ کیا وہ بعد میں بیٹنگ کرتے تو جیت جاتے, یا ٹیم مینجمنٹ کے ایشوز تھے, یا پریشر تھا, فیکٹر کیا تھا؟ دیکھیں, سب سے بڑا تو دھچکا آج نیوزی لینڈ کو لگا وہ میچ سے قبل لگا, جب ان کے پریمیم جو ٹاپ کے فاسٹ بالر تھے میٹ ہنری, جو کہ اس ایونٹ کے بھی ٹاپ وکٹ ٹیکر بالر تھے, اور جب لاسٹ میچ ہوا گروپ میچ بھارت کے ساتھ نیوزی لینڈ کا, اس میں بھی انہوں نے 5 وکٹیں حاصل کی تھی. میچ ہنری وہ آج کے میچ میں جو ہے وہ باہر ہو گئے, فائنل نہیں کھیل سکے. یہ نیوزی لینڈ کے لیے بڑا سیٹ بیک تھا کہ ان کی بالنگ کا ایک اہم پلر جو تھا وہ ایونٹ سے باہر ہو گیا, فائنل نہیں کھیل سکا. تو نیوزی لینڈ کو اپنے اسپنرز پر ہی زیادہ تر انحصار کرنا تھا, اسی لیے پریشر گیم بھی تھا اور ان کا اپنا بڑا فاسٹ بالر بھی نہیں تھا. تو انہوں نے پہلے بیٹنگ کرنے کو ترجیح دی کہ پہلے بیٹنگ کرنے میں جو ہے عام طور پہ پریشر کم ہوتا ہے. لیکن بھارت کے اسپنرز جو ہیں, آپ کو پتا ہے پورا ایونٹ جو ہے وہ ایک ہی گراؤنڈ پر کھیلتے رہے ہیں, اور اسی پچ پہ جو ہے یہ آج جو نیوزی لینڈ کے خلاف انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان فائنل کی پچ استعمال ہوئی تھی, یہ اس سے پہلے انڈیا اور پاکستان کے میچ میں بھی یہی پچ استعمال ہوئی ہے. تو جو بھارت تھا اس کو اس پچ کا اور ان کنڈیشنز کا زیادہ بہتر طور پر اندازہ تھا, اسی لیے انہوں نے اپنے اسپنرز کو میدان میں اتارا. اپنے اسپنرز کو میدان میں. بہت شکریہ آپ کا ذیشان, آپ نے بہت ڈیٹیل سے اس بارے میں بتایا. سید محمد اویس ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں, کرکٹ سے ریلیٹڈ پروگرام بھی کرتے ہیں, اسپورٹس سے ریلیٹڈ, اور کرکٹ اینالسٹ بھی ہیں. سید محمد اویس, آج بھارت کا دن ہے, ایک اور چیمپئنز ٹرافی بھارت نے اپنے نام کر لی ہے. اٹس اے بگ ڈے فار دیم. ہاؤ واز دا فائنل میچ؟ دیکھیں, فائنل میچ کی اگر بات کریں تو اوبیسلی جب میچ سٹارٹ ہوا تھا تو جیسے ذیشان بھی کہہ رہے ہیں, میٹ ہنری کا نہ ہونا وہ کہیں نہ کہیں ان کی جو کمی ہے وہ اوبیسلی نظر آپ کو آ رہی تھی, لیکن انڈیا فیوریٹس تھا. اگر پوری اوور آل ٹورنامنٹ کی بات کریں تو جس طریقے کی وننگ اسٹریک ان لوگوں نے پورے ٹورنامنٹ میں رکھی, آپ کو پتا ہے گروپ اسٹیج میچز میں کو ہرایا, ناقابل شکست رہے, پھر چیمپئنز ٹرافی اپنے نام کی. پھر ایک پلس پوائنٹ ان کے پاس یہ تھا کہ جتنی بھی کرکٹ ہے انہوں نے ساری کی ساری ایک ہوم گراؤنڈ پہ کھیلی اور تینوں وکٹس کے اوپر کھیلی. ان کو پتا تھا کہ وکٹس کس طریقے سے اپنا ریئیکٹ کریں گی. یہاں پر ضرور ٹاس جو ان سے بڑا میٹر کرتا ہے جب بھی آپ دبئی اسپورٹ سٹی میں کھیلتے ہو, کہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آپ زیادہ جو بال ہے وہ آپ کا تھوڑا سا بال ایزی بیٹ کے اوپر آتا ہے, دوسرے نمبر پہ بیٹنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹیم اسٹرگل کرتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا رن بال پہ جانا پڑتا ہے. لیکن 200 جو 52 کا ٹارگیٹ تھا وہ اتنا نہیں تھا انڈیا کی. اگر آپ پوری پرفارمنس دیکھیں تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ 300 کے قریب آپ کو کرنا پڑے گا, اور لٹرلی اگر وہ ہوتا تو میچ کا شاید جو فکسچر ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے یہاں پر. لیکن ہیٹس آف ہے جس طریقے سے آپ دیکھیں, اگر آپ اوپننگ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, روہت شرما وہ آپ کو فارم کے اندر نظر آ رہے ہیں. مجھے یاد ہے اس سے پہلے جو سیریز ہوئی تھی جس میں انڈیا کو شکست ہوئی تھی تو سب ایک بات کرنے لگ پڑے تھے کہ روہت شرما اور وراٹ کوہلی کا کرکٹ جو ان سے ختم ہو چکا ہے کیریئر. لیکن جس طریقے سے اسٹک اراؤنڈ ان کی BCCI رہی ہے ان کے ساتھ, یہ ہوتے ہیں بڑے میچ کے پلیئر جس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں انڈر پریشر. روہت شرما نے ایک بڑا زبردست آغاز دیا. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے ڈاؤن دی آرڈر جا کے شرییس ایئر کی بات کروں تو کانٹریکٹ سے بھی وہ لڑکا گیا تھا, ٹیم سے ڈراپ ہوا, IPL کی ٹیم سے ڈراپ ہوا, لیکن ایک ہوتا ہے نا اسٹرانگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اس نے اپنا اسٹرانگ مائنڈ سیٹ رکھا. آپ دیکھیں بڑے میچ کے اندر آ کے اس نے پرفارم کیا تو ایک پورا جیل اپ اسکواڈ آپ کو انڈیا کا نظر آ رہا تھا. اور وہی بات ہے کہ اچھی ٹیم ہے کھیلنے والی, بیسٹ ٹیم اس وقت جیتی ہے. لیکن جو ہنری کا جو ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا نیوزی لینڈ کا کہ وہ نہیں کھیل سکے, وہ بہرحال فائنلی بھارت چیمپئنز ٹرافی ایک بار پھر جیت چکا ہے. بہت شکریہ سید محمد اویس ہمارے ساتھ موجود تھے.
اور ناظرین بات کریں گے نیوزی لینڈ کے آل راؤنڈر گلین فلپس کی۔ چیمپئنز ٹرافی کے دوران انہوں نے اپنی شاندار فیلڈنگ کی وجہ سے نمایاں کردار ادا کیا ہے اور فائنل میں بھی انہوں نے زبردست چستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی اوپنر شبمن گل کا ناقابل یقین کیچ پکڑا۔ شبمن گل 31 رنز بنانے کے بعد پویلین واپس لوٹ گئے۔ گلین فلپس اس سے بھی قبل ایونٹ میں کئی میچز پکڑ کر شائقین کو حیران کر چکے ہیں۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی فائنل میں بھارتی ٹیم کی فیلڈنگ معیار کے مطابق نہیں رہی۔ کئی کیچز ڈراپ کرنے کے باعث کیوی بیٹرز کو مواقع ملتے رہے۔ اوپنر رچن روندرا کے 2 اوورز میں 2 مرتبہ کیچ ڈراپ ہوئے۔ 7ویں اوور میں محمد شامی نے اپنی ہی گیند پر کیچ چھوڑا۔ اگلے اوور میں شریاس ایئر نے کیچ ڈراپ کیا۔ 35ویں اوور میں کپتان روہت شرما انہوں نے مڈ وکٹ پر ڈیرل مچل کا کیچ پکڑنے کا موقع ضائع کر دیا۔ 36ویں اوور میں شبمن گل نے ڈیپ اسکوائر لیگ پر گلین فلپس کا کیچ چھوڑ دیا۔ کچھ دیگر اہم خبروں کے لیے آپ کو لے کر چلتے ہیں کاشف اور نازیہ کی طرف۔ شکریہ سلمہ۔ ناظرین کچھ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے گوادر ایئرپورٹ کے خلاف پاکستان دشمن میڈیا کے پروپیگنڈے کو جس کو بے نقاب کیا گیا۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ مکمل طور پر فعال ہے اور اندرون اور بیرون ملک اور چارٹرڈ پروازیں باقاعدگی سے آپریٹ کر رہی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں انیس احوان۔ مغربی میڈیا خاص طور پر نیو یارک ٹائمز، CNN اور BBC ایک بار پھر پاکستان کی ترقی کے خلاف جھوٹے بیانیے گھڑنے میں مصروف ہیں۔ مغربی میڈیا نے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو اپنا ہدف بنا لیا ہے، مگر حقیقت وہ نہیں جو یہ پروپیگنڈا نیٹ ورک دکھا رہا ہے۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ مکمل طور پر فعال ہو چکا ہے، جہاں داخلی، بین الاقوامی اور چارٹرڈ پروازیں باقاعدگی سے آپریٹ کر رہی ہیں۔ PIA پہلے ہی ہفتہ وار متعدد پروازیں چلا رہا ہے، جن میں مسقط کے لیے بین الاقوامی پروازیں بھی شامل ہیں، جو گوادر کے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک کردار کا ثبوت ہے۔ ایئرپورٹ 24 گھنٹے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وسیع رن وے، A380 جیسے بڑے طیاروں کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ ایئرپورٹ کوسٹل ہائی وے اور گوادر پورٹ سے منسلک ہے، جو تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے زبردست مواقع پیدا کر رہا ہے۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رواں سال 20 جنوری سے 26 فروری تک کل 42 ملکی اور غیر ملکی پروازیں ہوئیں، جس میں 1537 مسافروں نے سفر کیا۔ سیکیورٹی فورسز ہر قسم کے خطرات کو ناکام بنانے کے لیے ایک مربوط سیکیورٹی نظام کے تحت مکمل کنٹرول کر رہی ہیں۔ یہی وہ ترقی ہے جو نیو یارک ٹائمز اور دیگر مغربی لابیز کو ہضم نہیں ہو رہی۔ مغربی میڈیا کی دیکھا دیکھی بھارتی میڈیا نے بھی گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پاکستان کی معیشت کو پھلتا پھولتا دیکھنا ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، اس لیے جھوٹے بیانیے بنا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سچ یہی ہے کہ گوادر اب حقیقت میں ایک بین الاقوامی تجارتی مرکز بن رہا ہے اور پاکستان کے دشمن اس ترقی کو روکنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، لیکن ان کا ہر جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہوگا۔ پاکستان کی ترقی کا سفر جاری رہے گا اور دشمنوں کے منصوبے خاک میں ملیں گے۔ انیس احوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ جب تک ملک سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ مرید میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ PTI واحد سیاسی پارٹی ہے جس کا ایجنڈا ہی پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ سوشل میڈیا اور بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا PTI کا خاصہ ہے۔ رانا تنویر نے کہا کہ چین ہمارا قریبی دوست ہے اور ہر قسم کے مشکل حالات میں چین نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ چین نے $2 ارب جو رول اوور کر کے 1 سال کی مزید توسیع دی ہے، اس سے ملک کی معیشت بہتر ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ وطن عزیز میں منافرت اور انتشار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے اقلیتی برادری کے تحفظ کے لیے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ یہ بڑا بنیادی جز ہے ہمارے مذہب کا کہ یہاں پہ اقلیتیں جو ہیں وہ ہنسی خوشی رہیں اور اس سرزمین کے اوپر، اس مٹی کے اوپر ان کا وہی حق ہو جو کسی اکثریتی پاکستانی کو ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس اسپرٹ کے ساتھ پنجاب حکومت جس طرح آگے بڑھ رہی ہے اور جو انٹیگریشن جو ہو رہی ہے پاکستان کی مختلف مذہبی ڈینومینیشنز کو، یہ ایک بڑا خوش آئند ہے ملک کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، ایک صحت مندانہ معاشرے کے لیے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام کی قیادت میں خصوصی کمیٹی نے چلاس گلگت بلتستان کا دورہ کیا۔ وفد نے متاثرین بھاشا ڈیم کے جرگے سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر امیر مقام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت متاثرین بھاشا ڈیم اور داسو ڈیم کی بحالی اور علاقے کی ترقی کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے چلاس میں دانش اسکول کے قیام کے لیے وزیر اعظم سے خصوصی سفارش کا وعدہ بھی کیا۔ جرگے میں متاثرین نے اپنے مسائل پیش کیے جن کے حل کے لیے تکنیکی کمیٹی کو فوری ہدایات جاری کی گئیں۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
कहते हैं कि लोग इक़्तिदार में आकर बदल जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ कैसा लीडर है जो हुकूमत में आकर खुद तो नहीं बदला लेकिन पूरे मुल्क के हालात बदल डाले। मुआशी बहरान, महंगाई का तूफान, बाजार सुनसान, हर कोई पूछ रहा था कि आखिर कौन संभालेगा पाकिस्तान। फिर नए अज़्म के साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लाहात के मुश्किल फैसले किए, दिन रात एक कर दिए और आज ये सिर्फ एक साल नहीं, मेहनत की एक दास्तान है जिसे आने वाले जमाने देर तक दोहराएंगे। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। वेलकम बैक। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि दहशतगर्द मदारिस और उलमा किराम को निशाना बनाकर दीन को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में ताज़ियती मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मौलाना हामिदुल हक हकानी जैसे बेज़रर इंसान को निशाना बनाना सफ़ाकियत और दरिंदगी की इंतहा है। अभी जो बलोचिस्तान में वाक़या हुआ है, एक आलिम दीन तरावी पढ़ रहा है, 18 रकात पढ़ चुका है, मुसल्ले पे उसको शहीद कर दिया गया। ये भी जिहाद के ज़ुमरे में शुमार किए जाएंगे। हज़रत शेख मौलाना हसन जान को शहीद किया जाए, उस्तादुल असातिज़ा मौलाना नूर मोहम्मद साहब वज़ीरिस्तान के, वो शहीद होते हैं और उसको वही शख्सियत है जिसको आम लोग अपने अल्फाज में उस्ताद के रफ से पुकारते थे। मौलाना मेहराजुद्दीन जमीयत उलमा इस्लाम के एक मजबूत तवाना आवाज़ थे और उसके दिमाग थे। वो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ किस कदर वो खुलूस से भरा हुआ इंसान था। उसको शहीद किया जाता है। बाजवड़ के जलसे में, तहसील लेवल का एक जलसा, छोटा सा जलसा, वहाँ खुदकुश किया जाता है। हम 90 जनाजे उठाते हैं। मैं अपने इन जवानों को शुहदा का नाम भी दूंगा और उसके कातिल को मैं कहूँगा कि ये मुजाहिद है। कम से कम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस तज़ाद को सीने में जगह मत दीजिए। ये काली आंधियां हैं, आती हैं गुजर जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने अकोड़ा खटक सान्हे में शहीद होने वाले मौलाना हामिदुल हक हकानी समेत तमाम शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान बाशिंदों के खिलाफ 31 मार्च के बाद सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन देते हुए वाज़ेह किया है कि 1 अप्रैल से तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी की डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। मुकर्रर तारीख के बाद उन्हें गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अफगान शहरियों को वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो बाइज्जत तौर पर वापस चले जाएं। पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरियों के बराह रास्त मुलविस होने के बाद ये फैसला किया गया है। अफगान महाजरीन कई दहाइयों से पाकिस्तान में मुकीम हैं और हुकूमत ने उनका भरपूर ख्याल रखा। हालिया दहशतगर्दी के पेश नज़र हुकूमत ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स के खिलाफ का फैसला किया है। अफगान बाशिंदों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इस हवाले से इत्मीनान का इजहार करते हुए इक़दाम को खुशाइंद करार दिया है। आजकल जो मसाइल हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के या कुछ और इधर जो स्नैचिंग वगैरह जो बहुत सारे बदमनी के हालात हैं, इसमें ज़्यादातर दखल अंदाजी अफगानिस्तान से हो रही है। ये एक अच्छा फैसला है कि 31 मार्च तक उनको लास्ट डेडलाइन दे दी गई है और उम्मीद जाहिर करते हैं कि इंशाल्लाह इसके बाद पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत बरकरार रहेगी और दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी भी आएगी। देखने में आ रहा है कि जितनी भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, कहीं ना कहीं इनका उनमें अमल दखल ज़रूर होता है। मैं तो कहता हूँ कि ये ऑपरेशन पहले होना चाहिए था।
नाज़रीन, गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमत की मुहिम कामयाबी से जारी है। सख्त सरहदी सिक्योरिटी इकदामात से पाकिस्तान में स्मगलिंग में नुमायां कमी वाक़ हुई है। स्मगलिंग को रोकने के लिए पाक ईरान और पाक अफगान सरहदों पर तमाम गैर कानूनी रास्ते बंद कर दिए गए। मुल्क भर में 54 मुश्तरका चेक पोस्टें कायम की गईं ताकि स्मगल शुदा माल आबादी वाले इलाकों तक पहुंचने से रोका जा सके। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 के दौरान मुल्कगीर कार्रवाइयों में 75.6 अरब रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त किया गया और ईरानी तेल की आमद में नुमायां कमी वाक़ हुई। नाज़रीन, 23 मार्च अज़्म, यकजहती और हुब्बुल वतनी का वो दिन है जब मुसलमानों ने अपनी अलग पहचान और आज़ाद वतन का फैसला किया। शहरियों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा है कि यौम पाकिस्तान हमें सिखाता है कि यकजहती, कुर्बानी और अज़्म से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। 23 मार्च उस जोश और वलवले की बुनियाद है जिसने एक मुल्क की तख्लीक कर दी, और उसी जोश और उसी वलवले के साथ हमने पाकिस्तान के लिए और खिदमत सर अंजाम देंगे। उस दिन फैसला किया गया कि हमें एक अलग वतन बनाना है, जहाँ पे मजहबी आज़ादी हो, जहाँ पे सारे मिनॉरिटीज़ को अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस की आज़ादी हो। मुझे बचपन से बहुत शौक रहा है परेड देखने जाने को। मैं काफ़ी सालों तक जाती भी हूँ एंड मेरी कोशिश होती है मैं हर साल जाऊँ। तो ये सर हमें मैसेज देता है कि हमारे अंदर जो पावर है, जो हमारे पास नेशनल यूनिटी है, जो हमारी फेडरेशन है, वो ये शो स्ट्रॉन्ग करती है कि अभी भी हम स्ट्रॉन्ग हैं। आई रियली होप कि हमारी जो कमिंग जनरेशंस हैं और हम भी एक दफ़ा फिर से वही चीज़ें जो है वो चेरिश कर सकें, जिस तरह से हम पहले 14 अगस्त या 23 मार्च को सेलिब्रेट करते थे। अब भी हम वही जो पेट्रियाटिज्म है या वही इमोशंस के साथ इन चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकें ताकि ये चीज़ें वैनिश ना हो पाए, ताकि आगे कंटिन्यू रह सके। और नाज़रीन, 23 मार्च का दिन हमें हमारे कौमी हीरोज़ की याद दिलाता है। चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाले हीरो हिदायतुल्लाह का अपनी खिदमत के हवाले से कहना था कि वो 1988 से तालिब इल्मों की खिदमत में मशगूल हैं और उनके लिए हॉस्टल भी बनाया है। मेरा नाम हिदायतुल्लाह, चित्राल शहर से बिलोंग करता हूँ। मैं 1988 से चित्राल के तालिब इल्मों की खिदमत में लगा हुआ हूँ और उनके लिए एक हॉस्टल बनाया हूँ। हॉस्टल के अंदर मुझे आइडिया आ गया कि चित्राल के तालिब इल्मों के मसाइल क्या हैं, और चित्राल में यही है कि तालीम के अलावा और कोई आगे जाने का रास्ता नहीं है। इस सिलसिले में वहाँ के हॉस्टल में एक तालिब इल्म के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा, तो वो मैट्रिक में फेल था, D.Com में फेल था, B.Com फर्स्ट में फेल था। मैंने उसको बिठा दिया, बेटा तू टैलेंटेड है, रहीन है, और इसमें आप पढ़ते नहीं, मेहनत नहीं करते। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा फाइनेंस का मसला है, मैं आगे नहीं पढ़ सकता। मैंने उस बच्चे को, उस तालिब इल्म को बता दिया, मैं आपके मसाइल हल कर लूँगा, यूनिवर्सिटियों के एडमिशन वगैरह मैं कर लूँगा। तो वो फिर B.Com फाइनल में टॉप कर दिया। टॉप करने के बाद 2009 में इन्होंने मुझे कॉल कर दिया कि मेरा IM साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस पेशावर में मेरा दाखिला होने वाला है, मुझे कोई 40,000 रुपये एडमिशन का फ़ीस चाहिए। तो मैंने पेशावर में अपने एक दोस्त से कहा कि इसको कोई एडमिशन का मसला है, कोई 40,000 रुपये डोनेशन चाहिए। उन्होंने उनको 40,000 रुपये दे दिया। आज वही तालिब इल्म IM साइंस पेशावर का डायरेक्टर हैं। ये हमारा पहला तालिब इल्म था और वो उसकी वजह से हमें आइडिया भी आ गया, उसकी वजह से अल्लाह ताला हमें रास्ता भी दे दिया। और आज हम अल्लाह के फजल करम से एक स्टूडेंट से आगाज़ किया था, आज हम पर ईयर जो है चित्राल के 100 तालिब इल्मों को, गरीब यतीम बच्चों को आला तालीम में, इंजीनियरिंग, मेडिकल में, MPhil PhD तक हम सपोर्ट कर रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में सियासी तज्ज़ियाकारों और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन ने खबरदार किया है कि भारत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात और जाबराना हथकंडे इलाकाई इस्तेहकाम को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने बढ़ती हुई कशीदगी को मुकम्मल जंग में तब्दील होने से रोकने के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी मुदाखलत पर जोर दिया।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक माहिरीन ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में भारतीय वज़रा एस जयशंकर और राजनाथ सिंह के हालिया बयानात की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें इश्ताल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के दावे जम्मू कश्मीर की तारीखी और कानूनी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते, जो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ा इलाका है। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वह जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए फौरी इक़दाम करे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी पसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाले अल्ताफ़ हुसैन नामी कश्मीरी को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंदन में तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम एक वेबिनार में मकबूजा जम्मू कश्मीर की ख़वातीन को दरपेश मुनज़्ज़म तशद्दुद की अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी तहक़ीक़ात का मुतालिबा किया गया। वेबिनार में जिनसी ज़्यादतियों, जबरी गुमशुदगियों, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे काले क़वानीन के निफाज को उजागर किया गया, जिनको भारत जबर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वेबिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कश्मीरी ख़वातीन के अज़्म व हिम्मत की तारीफ़ की। मुकर्रीन ने करन पोशपुरा इज्तिमाई इस्मत दरी को भारत के जंगी जराइम का सबूत करार दिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बल्दियाती नुमाइंदों के वफ़द ने मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कश्मीरी अवाम को सब्र, कुर्बानी और आज़ादी के जज्बे को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है और उनके हक़ खुदरादियत की उसूली मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। भारतीय ब्राह्मस मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने के 3 साल मुकम्मल। भारत का हथियारों के हवाले से कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी निज़ाम इंतहाई मशकूक है। 9 मार्च 2022 को भारत का ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के इलाके मियां चन्नू में आ गिरा था, जो इस बात का सबूत है कि बड़े बड़े हथियार रखने वाले भारत के पास इन हथियारों को संभालने की सलाहियत नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल का पाकिस्तान के इलाके में गिरना हिंदुस्तानी अफवाज और बिलखुसूस उनकी टेक्नोलॉजी पर बड़ा सवालिया निशान है। भारत ने इस हादसे के बाद पाकिस्तान के साथ माजरत करते हुए इसे इंसानी गलती करार दिया और हादसे के जिम्मेदार 3 एहलकारों को भी बरतरफ किया। पाकिस्तान की जानिब से वाक़े की मुश्तरका तहकीकात के मुतालिबे पर भारत ने कोई तवज्जो नहीं दी। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। यार रास्ता खोलो, मेरा सामान खराब हो रहा है। मैं तो दुआएं देता हूं उन लोगों को जिन्होंने मुल्क भर में मोटरवे, सड़कें और पुल बनाए और एक तकलीफ दे सफर को आसान बनाए। हाँ जी, शुक्रिया तो बनता है। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात के लिए हमास और इसराइल रज़ामंद हो गए हैं। फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात कल दोहा में मुतवक्किल हैं। इसराइल ने मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अपना वफ़द कतर भेजने की यकीन दहानी कराई है। इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा कि बातचीत में शिरकत के लिए वफ़द जल्द कतर रवाना होगा। हमास ने भी कहा है कि जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात शुरू होने के कवी इम्कानात हैं। इससे पहले अमरीका ने इसराइल और हमास के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का इंदिया दिया था। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए तल अवीव में इज्तिमाई मुज़ाहिरा हुआ। वज़ारत दिफ़ा की इमारत के सामने हज़ारों मुज़ाहिरीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि बाकी यरगमालियों की रिहाई के लिए हुकूमत फौरी तौर पर हमास से मुज़ाकरात शुरू करे। दूसरी जानिब हमास के सरबराह के सियासी मुशीर ने कहा कि हमारे रहनुमाओं और अमरीकी नुमाइंदे के दरमियान दोहा में कई मुलाकातें हुई। मुलाकातों में कैदियों के तबादले पर तबादला ख्याल किया गया। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और माजूल सदर बशार अल असद के हामियों के दरमियान 3 दिनों से जारी मुसल्लह झड़पों में हलाक होने वालों की तादाद 1000 से तजावज़ कर चुकी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साहिल इलाकों लज़किया और तरतूस में सिक्योरिटी फोर्सेस की बशार अल असद के हामियों के साथ शुरू होने वाली मुसल्लह झड़पें ताहाल जारी हैं। हलाक होने वालों में 745 आम शहरी, जबकि 125 सिक्योरिटी फोर्सेस और 148 साबिक माजूल सदर के हामी जंगजुओं की है। आम शहरियों में अक्सरियत अलवी फ़िरक़े के लोगों की है। इलाके में मुसल्लह कशीदगी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद नकल मुकानी करके लबनान मुंतकिल हो चुकी है। कशीदगी की वजह से लास्के और तरतूस में कर्फ्यू जारी है। शामी सिक्योरिटी हुकाम ने इलाके में इस्तेहकाम बहाल करके अवाम की जानो अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के आज़म का इजहार किया है।
मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात अरबाब खिजर हयात ने कहा है कि पीटीआई पेशावर ने सूबाई हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि पीटीआई पेशावर ने सूबाई हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों को झूठ का पलंदा करार दिया है। जारी करदा चार्जशीट सूबाई हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। सूबाई हुकूमत का तरक्याती कामों के हवाले से बयानिया झूठा साबित हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अपनी ही पार्टी के कारकुनों ने एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सरमायाकारी बोर्ड के वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने कहा है कि हमने मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम दिया है और बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। वो चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील मोहम्मद अली मलिक से। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख ने अपने बेटे इरफान कैसर शेख की बरसी के मौके पर अपने डेरा चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब तेजी से सफर कर रहा है। SIFC के तहत पूरे मुल्क के इदारे इकट्ठा काम कर रहे हैं ताकि एक ही बार जो उसकी फैसिलिटेशन है या जो उसकी इजाज़तें लेनी है वो एक ही बार इकट्ठी दी जा सके और बाहर के सरमायाकार को इससे काफ़ी एतमाद का इजहार हुआ। वफाकी वजीर ने कहा गैर मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आई है और मजीद आने की तवक्को है। इरफान कैसर शेख की बरसी के मौके पर मुल्क को कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। मलक मोहम्मद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, चिन्योट। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकातें की। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान की माशी तरक्की और मजबूती ही हम सबकी बका की जामिन है। तरक्की करता हुआ पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम के दिल की आवाज़ है। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान अब मुस्तहकम होने का सफर तय कर रहा है। मुल्क को महफूज बनाना और दहशतगर्दी का खात्मा अवलीन तरजीह है। मुलाकात करने वाले MPAs में गजाली, सलीम भट्ट और गजनफर अब्बास चीना शामिल थे। वफाकी वजीर पब्लिक अफेयर यूनिट राना मुबशर इकबाल ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अवाम के मसाइल का हल, मुआशी तरक्की और खुशहाली और सरमायाकारी का फ़रोग हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत ने अवाम के मसाइल के हल और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान महंगाई की शरह 38% से कम होकर 2% से नीचे आ गई है। वज़ीर ममलकत मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी खेलदास कोहिस्तानी ने कहा है कि आज मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हम अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। वो जाम शुरू में कारकुनों से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील शिराज अली डाहरी से। कारकुनों से खिताब करते हुए मुमलकती वजीर खियलदास कोहिस्तानी ने कहा कि मुश्किल दौर गुजर चुका है, अब तरक्की का दौर जारी है। मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई तो मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में कमी हुई। जो विजन हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का था, उसी विजन को वजीर आजम शहबाज शरीफ आगे लेकर चल रहे हैं। तो हमारी कमिटमेंट इस मुल्क के साथ है। हम बहादुरी से सियासत करते हैं, हम बहादुरी से कारोबार करते हैं, हम बहादुरी से आगे बढ़ना चाहते हैं। वजीर मुमलकत का कहना था कि दुनिया भर से सरमायाकारी आ रही है। बिजली, आटा और दीगर खाने पीने की अशिया सस्ती हो रही हैं। अवाम से जो वादे किए वो पूरे कर रहे हैं। कारकुनों से मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन, सीनियर रहनमा शाह महमूद शाह, निहाल हाशमी और दूसरे रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इससे पहले जब वजीर मुमलकत थानो बुला खान पहुँचे तो बड़ी रैली की क़यादत में उनका इस्तकबाल किया गया। वजीर मुमलकत खियलदास कोहिस्तानी ने कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। जो जिम्मेवारी मिली है इसे भरपूर अंदाज में निभाने की कोशिश करके अवाम की खिदमत करूँगा। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, थानो बुला खान, जाम शोरो। पाकिस्तान टेलीविजन की 8वें रोज़े की ट्रांसमिशन में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र के उन्वान से उलमाए किराम ने गुफ्तगू की, जबकि मारूफ अदाकारा उसना शाह ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसील बता रहे हैं सैयद जहांगीर अली। 8वें रोज़े की रमज़ान ट्रांसमिशन का उन्वान अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र था, जिसे मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती उमैर महमूद और अल्लामा कुमैल मैदवी ने कहा कि अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों को याद करने का और उन पर शुक्र करने का हुक्म दिया है। फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, तुम अल्लाह ताला की नेमतों को याद किया करो। और फिर एक और जगह फरमाया कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा किया करो और मेरी नाशुक्री मत करना। ट्रांसमिशन में इस्लामी तारीख, दीनी मालूमात और मालूमात आम्मा पर मबनी क्विज शो हुआ। शो के अगले राउंड में क्वालिफाई करने वालों को इनामात दिए गए।
احسن خان اور جگن کاظم نے شیف منزہ کے ساتھ مل کر مزیدار کھانے کی ڈش بنائی، جبکہ ٹوٹکے کے سیگمنٹ میں بلقیس شیخ نے رمضان المبارک میں افطار کے بعد توانائی کے حصول کے لیے سود مند غذا اور مختلف ٹپس بھی بتائیں۔ ٹرانسلیشن میں مشہور اور معروف اداکارہ اشنا شاہ نے شرکت کی اور فنی کریئر کے بارے میں بتایا۔ بچوں کے سیگمنٹ میں احسن خان اور جگن کاظم کے ساتھ مہمان اداکارہ نے بچوں کو کہانیاں بھی سنائی۔ اذان مغرب کے بعد 8ویں روزے کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی۔ رمضان پاکستان ٹرانسمیشن نہ صرف عوام میں بے حد مقبول ہو رہی ہے بلکہ یہ ناظرین میں دینی معلومات فراہم کرنے کا بھی اہم ذریعہ ثابت ہو رہی ہے۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اسلام آباد میں مسلم ہینڈز اسکول آف ایکسیلنس میں 700 افراد کے لیے افطار کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد اشفاق خان۔ نجی فلاحی ادارے مسلم ہینڈز کے تعاون سے اسلام آباد میں مستحق افراد کو روزہ افطار کرایا جا رہا ہے۔ مسلم ہینڈز کے رضاکاروں نے افطار کے پیکٹس روزہ داروں میں تقسیم کیے۔ ہم لوگوں نے اب تک پورے پاکستان آزاد کشمیر میں 15,000 مستحق لوگوں کو ہم لوگوں نے فوڈ پیکس پرووائڈ کیے ہیں۔ مسلم ہینڈز ایک فلاحی ادارہ بھی ہے انٹرنیشنل، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں جس میں ویڈو فیملیز بھی ہیں، آرفنز بھی ہیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو کمیونٹیز کے اندر جو نیڈی لوگ ہیں ان تک ہماری رسائی ہوتی ہے۔ اٹس اے گریٹ انیشیٹو، اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آئی ووڈ ہائیلی ریکویسٹ دیم کہ پلیز اگر خود فزیکلی آ کے یہاں پہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو کریں، اگر فزیکلی نہیں آ سکتے تو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے muslimhands.org.uk وہاں پہ آپ لوگ ڈونیشن کر سکتے ہیں۔ مسلم ہینڈز کی طرف سے لگائے جانے والے اس دسترخوان سے 700 کے قریب مستحق افراد روزہ افطار کر رہے ہیں۔ یہاں کا سسٹم بہت اچھا ہے، یہاں کئی دنوں سے یہ افطاری دے رہے ہیں۔ ان کا بڑا اچھا نظام چل رہا ہے غریبوں کے لیے، جیسے مطلب کہ یتیم مسکین سب یہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نیکیاں کمانے کے لیے مستحق اور نادار افراد کے لیے شہر بھر میں افطار کا بندوبست کیا جا رہا ہے تاکہ روزہ دار کو روزہ افطار کروانے کا ثواب حاصل کیا جا سکے۔ رمضان ہمیں محبت، صبر اور سخاوت کا درس دیتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور خیرخواہی کو فروغ دیں۔ محمد اشفاق خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ محکمہ ایجوکیشن سے ریٹائر ہونے والے ہیڈ ماسٹر ملک ممتاز بشیر اعوان کے اعزاز میں الوداعی تقریب گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نجوال ضلع سیالکوٹ میں ہوئی۔ تقریب سے خطاب میں مہمان خصوصی CEO ایجوکیشن مجاہد حسین الوی نے کہا کہ وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں جو استاد کا احترام کرتی ہیں۔ مقررین نے ملک ممتاز بشیر اعوان کی تعلیمی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور انہیں تحائف بھی دیے۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت لہ -10، گوپس -3، استور بگروٹ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب بات کریں گے ملک کے بڑے شہروں کے درجہ حرارت کی۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں آج کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 13، کراچی 20، پشاور 10 اور کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور دیگر شہروں میں سب سے پہلے سری نگر کی بات کریں گے، جہاں آج کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں 13، لہ -10، پلوامہ اور اننت ناگ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس لیے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ درست ہر وقت بار وقت